हेलो, गुड मॉर्निंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। वेलकम विद द एसएसटी बुक। ये आपकी चैप्टर नंबर 19 है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। हमने डाइवर्सिटी चैप्टर पहले ही पढ़ लिया था, विविधता की समझ हम सभी को हो गई है अब। तो अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, जिसका मीनिंग है विविधता एवं उसके भेदभाव। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिफरेंसेस। लाइफस्टाइल इज द वे a person or group of people live, including the place they live in, the things they own, the kind of job they do, and the activities they enjoy. Lifestyle is influenced by the geography and history of the place where someone lives. Our way of living also includes what we eat, where the games we play, the occasions we celebrate, and of course the languages we speak. India has more than 1600 dialects of 22 main national languages that are people's mother tongues. It has more than 100 dance forms and 8 major religions of the world. Thus there is a wide variety of diversity in the lifestyles of the individuals and groups of people, but this diversity is not accepted or respected by all, though our constitution does. Prejudice. People do not always feel comfortable with other people who talk in a different language or belong to another region or religion. They feel more secure with people who are like them rather than those who are different. They make friends with those who think like them and those who are not like them. For example, like them and like the same things that they do. They form certain opinions about those who are not like them. For example, a villager may often see city people as money-minded, cunning, and lazy. A city dweller may often regard villagers as dirty, ignorant, and superstitious. Prejudices mean having always negative opinion about certain people or seeing them inferior without knowing much about them. People often prejudge unreasonably about other people or different race, gender, or religion. Prejudice is thus an unreasonable dislike and distrust of people who are different in some way, so they give unfair or unreasonable opinion about a diverse group. When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. Sometimes even a different accent of the language they speak is not respected. Often the prejudices about others are so strong that people. लास्ट चैप्टर में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें क्या होगा? दुख होगा, गुस्सा भी आएगा और हम असहाय महसूस करेंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो इस पाठ में, इस लेसन में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण क्या होते हैं इसके पीछे, कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। तो हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीजों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं। जैसा कि आपने देखा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है यहाँ पर। तो अगर हम हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर इसमें देखते हैं, अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्म यानी कि 8 जो कल्चर्स हमारे यहाँ हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उन अनुयायियों को मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 यानी कि 1600 से भी ज्यादा आपकी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और जो लोगों की मातृभाषाएं भी हैं। अपने अपनी जहां वो लोग रहते हैं वो उनकी मातृभाषा हो गई एक तरह से, लेकिन जो अपनी इंडिया की है वो पर्टिकुलर हिंदी है। यहाँ 100 से भी अधिक ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं, डांस होते हैं। यह विविधता हमारे हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी हम जब ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, तो वे बहुत अजीब और अपरिचित से लगते हैं। कई बार हम समझ भी नहीं पाते या जान नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं।
इनमें से कुछ ग्रामीण जो कि गांव के लोग होते हैं उनको अज्ञानी की तरह देखा जाता है, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, उनके बारे में कोई पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि वो कैसे, और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। जब ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया जाता है कि लोगों को आलसी व कंजूस मानना भी एक पूर्वाग्रह है ना। डू नॉट फॉर्म फ्रेंडशिप्स with them at times. They even tease, laugh or ban different activity. Individuals or group of take part in an activity. This prejudices affect relationships and may hurt sentiments of other people and even add to tensions. Creating stereotypes. When we fix people into one image, we create a stereotype. Belief or idea that a type of person has particular qualities or abilities because they belong to a particular race, gender or social class. When people say that those who belong to a particular region, religion, gender, race or economic background, they are money-minded, lazy, criminal or dumb, they are creating stereotypes. There are some money-minded and generous people everywhere. There are some money-minded and generous people everywhere, in every region, in every group, whether rich or poor, men or women. And just because some people are like that, it is not fair to think that everyone of the group will be the same. Stereotyping fits large numbers of people into only one pattern or type. Stereotypes affects all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. For example, in India, it is often said, you are a boy, cooking is not your job. Or you are a girl, horse riding is not your job. If a boy cooks, then he feels that other will either tease him or laugh at him, so he stops himself from cooking. Even in an emergency, at least in front of others. This is the way boys are, and this is how girls are. These are statements we hear constantly in the society and have to accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. The society fits all boys and all girls into an image created by it around us. Here are some qualities given below are some of them that boys are born with and some that are girls born with. In the first attempt, you will fix a quality with boys or girls. These are the stereotypes created by society and which you have grown with. Fill in the blanks with boys or girls and rethink. Are well behaved, are physically strong, are naughty, are soft spoken, make a very tasty dessert, fight with the others on the main road, help their mothers at home, are good at sports, are good at dance and painting, do not cry, are emotional, keep the house clean, drive very fast. तो जैसे मैंने आपको पूर्वाग्रह का बताया था, वो स्टीरियोटाइप कहते हैं उसे। इसमें यह राय नकारात्मक हो जाती है, जैसे कि कथनों में दिया गया है, बताया गया है इसमें कि लोग या तो कंजूस हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, जैसे लेजी हो गया, क्रिमिनल हो जाते हैं, डम हो जाते हैं। तो ये अलग अलग तरह की अपनी सोच होती है जिसे पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह यानी कि पहले बनाई गई सोच। तो जब हम सोचने लगते हैं कि किसी के काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों को इज्जत नहीं कर पाते और उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत ही नकारात्मक यानी कि नेगेटिव रूप में देखेंगे, और ये चीज होती भी है नॉर्मली। तो परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही यानी कि स्टेरियोटाइप हो सकते हैं, जैसे कि लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी, उनका रंग, जिस जगह से वो आए, जिस तरह से वो बोलते हैं, कपड़े पहनते हैं इत्यादि भाषाएं, जो वो भाषा या जिस तरह से उनका पहनावा होता है, ये सारी चीजों की वजह से होता है। ये अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, हमारे जो पूर्वानुमान होते हैं, वो इतने पक्के हो जाते हैं कि हम उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहते, इतने कतराने लग जाते हैं हम उनसे। तो इसकी वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़की में भेदभाव, यहाँ पर मैंने बॉय और गर्ल के बारे में बताया। तो समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव होते हैं, कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इन भेदभावों से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, या तो ऐसे ही होते हैं
इसमें सोचने वाली क्या बात है, आइए देखें कि क्या सच्चाई है। तो जैसे कि इसमें सच्चाई पूरी बताई गई है, कैसे कैसे बताया जाता है। जैसे कुकिंग है, तो बॉय अगर कुक कर रहा है, अगर किसी के सामने करता है तो वो ये सोचता है कि नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मुझे चिढ़ाएंगे कि देखो घर का काम कर रहे हैं, वो मुझ पर हंसेंगे। तो इस वजह से बॉय क्या करता है, घर के कामकाज में हेल्प नहीं करता। कुछ लोग गर्ल्स को कहते हैं कि हॉर्स राइडिंग तुम्हारे लिए नहीं बनी हुई है, तो इस वजह से तुम हॉर्स राइडिंग या फिर जॉब मत करो, तुम घर का काम संभालो। और बॉयज को कहा जाता है कि तुम तो लड़के हो, कुकिंग आप तुम्हारा जॉब थोड़ी है, तुम तो गर्ल का काम है वो, तो तुम तो जॉब करो, अपने बाहर घूमो फिरो, ऐश करो। तो ये क्या चीज होती है, ये जो भेदभाव किया गया है समाज के द्वारा किया गया है ना। तो नीचे दी गई एक लिस्ट दे रखी है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें ये आपको लिस्ट के अंदर यहाँ पर आपको ही और शी लिखना है आपको, या फिर बॉयज और गर्ल्स लिख सकते हैं, बॉय गर्ल लिख लीजिए आप, यहाँ पर ही शी नहीं आएगा। तो जो वेल बिहेव है उसके आगे बॉय या गर्ल जो आप लिखना चाहें वो आप लिखेंगे, है ना। तो ये आपको यहाँ पे दे रखे हैं, सब इजी है, यहाँ पे कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। तो इसमें आगे बॉय या फिर गर्ल फिल करना है आपको। फाइन। A common stereotype about some communities is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. But this is not a fact. At most places, poverty continues to be the root cause of illiteracy and not religion that keeps the children away from school, especially the girl child. Most communities, even poor, have begun to show interest in sending their girls to school. Now most teachers are women in urban and rural areas. At most places the distances between the school and home is not much. The children go to school walking. The grown up adolescents go to higher schools and colleges on bicycles or other public vehicles. Stereotypes about children with special needs. People at times are unkind and even ruthless to create stereotypes about the disabled children and tease them. Now the social service groups have changed the term disabled and the new term used in children with special needs. This is done to help them think positively and creatively instead of reminding them of their weakness by saying disabled every time. But some prejudiced people think that the mind of these children with special needs is weak and unbalanced as their limbs are weak, shaking and unable to keep balance. But they forget that the prominent scientist Stephen Hawking with many special needs is famous worldwide for his research and lectures in wheelchair. So यहाँ पे अभी आज हम यहीं तक ही करेंगे, इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ अभी। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, गर्ल्स स्टडिंग इन अ रूरल स्कूल, अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड पेंटिंग ऑन कैनवस। तो कॉमन स्टीरियोटाइप में क्या है कि जो समाज के द्वारा जो लड़कों को जो सोच दी गई है और जो लड़कियों को सोच दी गई है उसके बारे में बताया गया है कि बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती थी तो माता पिता क्या कहते थे, परिवार वाले, कि अरे रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के तो बहादुर होते हैं, रोते नहीं है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते, लड़के बड़े होते जाते थे, तो उन्हें विश्वास होता था कि लड़के रोते नहीं है। और आपने भी देखा होगा, बॉयज को कभी भी रोते हुए नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि आप कोई लड़के को रोना आए तो भी वो अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़के और लड़कियों दोनों को कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरों से चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, है ना। इसीलिए वो क्या करते हैं, दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेते हैं। हम लगातार ये सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती है। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसकी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक पोयम है, आई एम क्रिएटिव and happy, eyeless, and this, all this and more. Sometimes I feel so sad and sore. Folks make fun, it's nothing new. If you were I, what would you do? But I laugh and move my limbs. I do all my work and create paintings. तो वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की हैं, वे बहुत सुशील हैं। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा करनी चाहिए। और लड़कों के बारे में, लड़कियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और आगे देख लीजिए आप, तो एक क्रिएटिव और हैप्पी बताया गया है।
तो इसमें देख लीजिए आप यहाँ पर चाइल्ड है, तो मतलब बच्चे सभी तरह के मतलब अलग अलग क्वालिटीज को लेकर के पैदा होते हैं। जरूरी नहीं कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है वो गेम्स में अच्छा नहीं हो, और जो गेम्स में अच्छा है वो खाने में अच्छा नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हर तरह की क्वालिटी हर इंसान में होनी चाहिए, तो आज होती है, सॉरी। तो आज हम यहीं तक ही कर रहे हैं, और नेक्स्ट चैप्टर अब हम नेक्स्ट वीडियो के मतलब हाफ जो चैप्टर आपका बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करेंगे। सो बाय बाय एवरीवन।